Hello everyone. In today's lecture of general pathology, the topic we are going to discuss is necrosis. The basic definition or a general definition or general meaning of the necrosis is the murder of cell. And why murder of cell? Because it is a passive process. In this, the cell do not require any energy to destroy itself, and the cell injury ends with the cell death. Here, the cell injury is the irreversible cell injury, which is not recovered, irreversible cell injury. The second point which we are going to discuss is the death of group of cell. The basic definition of necrosis is the death of group of cells followed by the inflammation. Now, what are the signs of inflammation, or how can we describe that the necrosis is in necrosis we can see the inflammation. So the signs of inflammation are the redness, swelling, heat, pain, and the loss of function of that organ or that tissue. Now the type of necrosis are, so the first type of necrosis is the coagulative necrosis. Now, the coagulative necrosis is the most common type of the necrosis. It is the irreversible focal injury. It is mostly found in or mostly caused due to the cessation of the blood flow. The cessation means the sudden loss of blood or sudden shortage of blood due to clot or any other pathological condition, or less often it is by the bacteria or a chemical agent. Now, in which organs we can see the coagulative necrosis is in the solid organs like heart or a kidney or spleen, etc. The gross appearance of the coagulative necrosis is the area is like firm without liquid. It is swollen. The color of the organ is become pale. जो भी कलर होगा ऑर्गन का वो अगर रेड कलर का है तो वो हमको थोड़ा सा फेंट नजर आएगा. And if we see the microscopic view of the necrosis or coagulative necrosis is the empty cells with WBCs. वहाँ पे हमको empty cells नजर आएंगे, खाली cells नजर आएंगे, सिर्फ खाली cells रहेंगे, उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो नहीं रहेगा. और वो भी कौन से, विथ नेक्रोसिस, हम विथ WBCs. वहाँ पे हमको खाली सेल नजर आएंगे, खाली टिश्यूज नजर आएंगे. किसके साथ में? WBCs के साथ में. Now, the second type of necrosis is the liquefactive necrosis. The liquefactive necrosis is simply understood by these diagrams. Okay, now you can see here the liquefactive necrosis is by the solid से liquid बनना. मतलब एक organ solid था, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्स है, ये जो टिश्यू जो है वो नॉर्मल टिश्यू है. अब यहाँ पे ये टिश्यू डैमेज हो गया, और डैमेज होने की वजह से यहाँ पे ये जो हमको बारीक बारीक जो नज़र आ रहे हैं, ये बारीक बारीक जो दाने नज़र आ रहे हैं, ये है लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज एंड डिसॉल्व द एंटायर टिश्यू. ये लाइसोसोमल एंजाइम्स है. लाइसोसोम को जनरली जो कहते हैं कि लाइसोसोम है सुसाइड बैग ऑफ द टिश्यू. वो सुसाइड बैग है, वो सेल को खाने का काम करता है, या सेल अगर सुसाइड करना चाहे तो वो लाइसोसोम्स एंजाइम्स को रिलीज करके अपने आप को डाइजेस्ट करवा सकता. अब यहाँ पे ये एक सॉलिड टिश्यू है, ये बारीक बारीक जो हमें दाने नजर आ रहे हैं ये है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. और यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव किया गया, जब एक्टिव हुआ तो उसकी वजह से जो टिश्यू था वो लिक्विड हो गया. अब यहाँ पे हम ग्रॉस अपीयरेंस देखेंगे तो ग्रॉस अपीयरेंस में हमको जो ऑर्गन है वो नज़र आएगा, सॉफ्ट नज़र आएगा, क्योंकि वो एक लिक्विड फॉर्म में बन गया है, लिक्विड हो गया है, सॉलिड से लिक्विड हो गया है, तो वो हमको सॉफ्ट नज़र आएगा. लिक्विड फिल कैविटीज़ नज़र आएंगी, जहाँ लिक्विड फिल कैविटीज़ का मतलब होता है या पस होगा या फिर वहाँ पे सिस्ट नज़र आएगा. माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमको सेल डेबीज प्लस WBCs
नज़र आएंगे, मेनली माइक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसी में से भी हमको माइक्रोफेज नज़र आएंगे, और जो उसका स्ट्रक्चर रहेगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेल डैमेज हो रहा है, वहाँ पे सॉलिड से लिक्विड हुआ है, जो हमारा ऑर्गन है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टेट चेंज हो रही, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, और ये मेनली होता है ब्रेन में। So the third point which we are going to discuss is the caseous necrosis. The caseous necrosis का पहले तो caseous का मतलब होता है पनीर और a cheese like. पनीर और चीज जो होते हैं वो होते हैं सेमी सॉलिड अपीयरेंस। अब हमने जो पहले देखे थे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर हमने देखे कि ब्लड जो है वो एक तो लिक्विड है, तो लिक्विड यहाँ पे हमको सॉलिड, मतलब सॉलिड बनता हुआ नजर आया। यहाँ पे कोएगुलेट हो रहा है, कोएगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिड मतलब सॉलिड मास में कन्वर्ट होना। यहाँ पे हमने लिक्विड से सॉलिड बनते हुए देखे। यहाँ पे हमने लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर हमने जो थिक ऑर्गन था, जो भी थिक ऑर्गन था, लाइक हमारे पास मतलब कोई भी थिक ऑर्गन या फिर जो भी टिश्यू होगा हमारे पास में, तो वो हमने एक सॉलिड टिश्यू जो था, एक सॉलिड टिश्यू को हमने लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए देखे। वहाँ पे हमको पस फॉर्मेशन मिला या सिस्ट मिला, हमको लिक्विड फिल्ड कैविटीज मिली, और वो ऑर्गन सॉफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने पहले देखे कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे हमने देखे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ, और यहाँ पे हम देखेंगे कैशियस नेक्रोसिस इज दी कोएगुलेशन नेक्रोसिस प्लस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इन दोनों का एडिशन हमको वहाँ पे मिलेगा, इन दोनों का अपीयरेंस हमको वहाँ मिलेगा। इन दोनों का अपीयरेंस अगर हमको देखना है तो बेस्ट एग्जांपल है कि वो पनीर होगा। पनीर मतलब एक सॉलिड सेमी सॉलिड अपीयरेंस होगा, जिसका ग्रॉस अपीयरेंस हम देखेंगे तो वो हमको ड्राई नजर आएगा, सॉफ्ट नजर आएगा, और थोड़ा सा येलो कलर का नजर आएगा। अब हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो हमको यहाँ पे ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन नजर आएगा। ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो होता है वो होता है ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के अंदर। ये हो गया हमारा कैशियस नेक्रोसिस। अब हम जो अगला टॉपिक देखेंगे वो है फैट नेक्रोसिस। So the fourth topic we are going to discuss is the fat necrosis. फैट नेक्रोसिस का मतलब होता है कि ये हमको सिर्फ उन्हीं जगहों पे नजर आएगी बॉडी में जहाँ पे फैट फिल्ड कैविटीज है, या जहाँ पे फैट ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। फैट हमको जो नज़र आता है वो रहता है मेसेंट्री पे। मेसेंट्री मतलब स्टमक वॉल जो है या एब्डोमिनल वॉल जो है उसके सामने जो हमको नज़र आता है, तो उसको बोलते हैं फैट। सो यहाँ पे हमको ये कहाँ कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे फैट रिच लोकेशन इन अ बॉडी। फैट रिच लोकेशन हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो सिंपली हमको एक तो ब्रेस्ट में हमको फैट ज़्यादा नज़र आता है, एडिपोज टिश्यू नज़र आती, ट्रोमैटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट, एंड द फैट मेसेंट्रिक फैट नेक्रोसिस ड्यू टू द पैंक्रियाटाइटिस, और वो भी कौन सा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन होता है पैंक्रियास। now the fifth topic we are discussing is the फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस का मतलब होता है, पहले तो फाइब्रिन का मतलब होता है ये, इसको हम वर्ड को स्प्लिट कर लेंगे। फाइब्रिन का मतलब होता है फैब्रिन, और OID का मतलब होता है लाइक, मतलब फाइब्रिन लाइक नेक्रोसिस। यहाँ पे हमको डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन लाइक मटीरियल विच हैज स्टेनिंग प्रॉपर्टी लाइक फाइब्रिन, उसके पास स्टेनिंग प्रॉपर्टी होगी फाइब्रिन की तरह। एग्जाम्पल है PTAH का मतलब होता है, फुल फॉर्म ऑफ PTAH इज द फॉस्फोटंगस्टिक एसिड ऑक्सिलिन, टंगस्टिक एसिड हीमेटोटॉक्सिन। ये एक तरह का एसिड है जो कि हमारी इम्यूनिटी, जो कि मतलब एक जो आर्टरी, कोई भी आर्टरी को
कोई भी आर्टरी को फाइब्रोस कर सकता है। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर हमको आर्टरीज फाइब्रोस होती हुई नजर आएगी। इसमें एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स। इसमें इम्यून रिएक्शंस हमको नजर आएगी। इम्यून रिएक्शंस का मतलब होता है immune reactions or the autoimmune diseases like autoimmune diseases of necrosis। ग्रॉस अपीयरेंस हम देखेंगे कभी इस ऑर्गन का तो वो हमको पेल टिश्यूज नजर आएंगे, पेल ऑर्गन्स नजर आएंगे। और जो इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू हम देखेंगे वो रहेगा फाइब्रिन लाइक डिपोजिशंस, और वहाँ पे हमको थ्रेड लाइक अपीयरेंस नजर आएंगे, मतलब इस तरह के थ्रेड हमको नजर आएंगे वहाँ पे। चलिए फिर हमारा